A very good o'clock to all the dear students. Today we will start the explanation of geography first chapter, that is the Earth as a planet. So we all know that Earth is a unique planet and it is one of the 8 planets revolving around the Sun. The Earth is a third planet away from the Sun. Mercury and Venus being the first and second planets from the Sun. Okay, Mercury, Venus and then Earth. It is situated at a distance of about 150 million kilometers from the Sun. So what the distance of Sun from the Earth or the Earth from the Sun is 150 million kilometers. Okay, and the orbit of the Earth around the Sun lies between those of Venus and Mars. Okay, Earth's orbit lies between Venus and Mars. Okay, Earth is a unique planet. Why we call Earth a unique planet? We all know that it is the only planet having life on it. So existence of life makes Earth itself a unique planet. Then it's a home to a large variety of animals and human species and plant species. Okay, microscopic plants, animals, organisms. These kinds of large variety of species cannot be found on any of the other planets in this universe. And it is the planet which has atmosphere. The most important thing is that it has an atmosphere. What is an atmosphere? It's a blanket of air surrounding the Earth in which there is a mixture of many gases which all are important for the existence of human life, plant and other species. Okay, now let us talk about the shape of the Earth. In the olden days it was believed that the Earth is flat. When we did not have much techniques or to know about the shape of the Earth or the geography of the Earth, then the sailors used to believe that the Earth is flat. Due to this belief, sailors was afraid of traveling to far off places, thinking that they would slip into the bottomless ocean from the edge of the Earth. मीन्स जब सेलर्स को ये बिलीव था कि अर्थ फ्लैट है तो उन्हें फार ऑफ प्लेसेस में जाने से डर लगता था. द ओनली वे टू सेल देन वाज द सी रूट. ओके, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अर्थ की एज पर पहुंच जाएंगे यानी कि अर्थ के किनारे पर पहुंच जाएंगे तो कहीं वो सी में फॉल ऑफ ना कर जाएं, गिर ना जाएं. ओके, सो लेट अस सी कि कैसे ये जो मिथ था अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ वो दूर हुआ. सो द बिलीफ अबाउट द फ्लैट शेप ऑफ द अर्थ वाज चेंज्ड थ्रू द वर्क ऑफ एंशिएंट स्कॉलर्स. कुछ स्कॉलर्स ने अर्थ के शेप के बारे में जो बिलीफ था उस पर वर्क किया. द नेम्स वर पाइथागोरस, एरिस्टोटल, टॉलेमी, आर्यभट्ट एंड कोपरनिकस. Pythagoras is believed to have been the first to hypothesize that the shape of the earth is spherical. सबसे पहले उन्होंने hypothesize किया यानी assume किया कि जो shape है अर्थ का वो कैसा है, spherical है. एंड उनकी assumption से एराटोस्थेनीज ने अर्थ की करेक्ट सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया. ओके, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस? द बाउंड्री ऑफ एन सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कमफेरेंस. सो अर्थ की स्फेरिकल शेप को अज्यूम करते हुए एराटोस्थेनीज ने अर्थ की सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया. आफ्टर दैट एरिस्टोटल और टॉलेमी ने भी अर्थ के स्फेरिकल शेप को एक्सेप्ट किया. बट टॉलेमी बिलीव दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. टॉलेमी ये मानते थे कि अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. दिस व्यू ऑफ टॉलेमी वॉज द जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स. इसको कहते हैं जियो. जियो मीन्स अर्थ. ओके, तो अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज़ द जियोसेंट्रिक व्यू. बट कोपरनिकस जो एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने 1543 में अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज़. एंड वेयर इन उस बुक में उन्होंने स्टेट किया दैट अर्थ इज़ द राउंड, it rotates on its axis. उन्होंने ये बताया. and he also told that the earth revolves around the sun. Hence he proved that the sun is the center of the earth, the sun is the center of the universe, not the earth. And his theory of sun being the center of the solar system is known as the heliocentric theory. Helio means sun. So heliocentric theory states that sun is the center of the solar system or the universe. Okay, so he stated that day and nights are caused by the rotation of the earth around the sun and not the other way around as believed by early scholars. उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डे एंड नाइट होते हैं वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं. ओके, आर्यभट्ट जो कोपरनिकस से बहुत टाइम पहले एग्जिस्ट करते थे उन्होंने भी ये थ्योरी दी थी दैट अर्थ हैज़ अ स्फेरिकल शेप. नाउ कोलम्बस बाद में ये एक्सेप्ट कैसे हुआ? व्हेन कोलम्बस एन इटालियन सेलर वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अर्थ स्फेरिकल शेप. उन्होंने ये एक्सेप्ट किया and he suggested that one can reach द ईस्ट बाई सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप. उन्होंने बताया
कि कोई ईस्ट से स्टार्ट करके और वेस्ट से सेलिंग करते हुए वापस ईस्ट में आ सकता है। और ऐसा कब होता है? व्हेन वी सेल अराउंड राउंड शेप। जब हम राउंड शेप में चलते हैं तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ही told that one can reach the east by sailing west from Europe. Now he was proved correct when Portuguese navigator Magellan की थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट थी। when his ship sailed back safely to Europe after crossing the Atlantic, Pacific and Indian Oceans. जब मैगलन की जो शिप थी वो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस को क्रॉस करते हुए वापस यूरोप आ गई, तो इससे क्या पता चला कि एक अर्थ का एंटायर सर्कल लग गया, एक राउंड लग गया। सो दिस थ्योरी ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वाज दस प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट। और अब बिना किसी डाउट के ये थ्योरी प्रूव हो गई। नाउ व्हाट आर द इनडायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ? पहले जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं थे, नाउ डेज तो हमें सैटेलाइट से फ़ोटोज़ देखने को मिल जाते हैं, ओके, एंड वी हैव एड्स ऑल्सो। हमारे पास और भी ऐसे एड्स हैं जो हमें अर्थ की शेप के बारे में क्लियर नॉलेज देते हैं। बट अर्लियर डेज में जब ऐसा नहीं होता था तो हम कैसे बिलीव करते थे, या अर्ली स्कॉलर्स ने कैसे बिलीव किया कि अर्थ हैज़ अ राउंड शेप? दे न्यू दैट द अर्ली स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट had the earth been flat the time of sunrise and sunset at every place would have been the same. उन्होंने कहा अगर अर्थ फ्लैट होती तो हर जगह, अर्थ पे हर जगह सनराइज़ और सनसेट का टाइम सेम होता, ओके, क्योंकि अर्थ फ्लैट है। अगर आप एक फ्लैट सरफेस पर रोशनी मारेंगे, टॉर्च मारेंगे, तो हर जगह पर सेम टाइम पे लाइट पड़ेगी और सेम टाइम पर ही हटेगी, ओके। बट हाउ एवर द सनराइज एंड सनसेट टाइम डू नॉट अकर एट द सेम टाइम एट ऑल प्लेसेस। लेकिन ये हमने देखा है कि सनराइज़ और सनसेट सेम टाइम पर नहीं होता हर जगह। इंडिया में 5 आवर्स अर्लियर सनराइज होता है दैन लंडन इन इंग्लैंड, ओके। सो दिस प्रूव दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। और यहाँ पिक्चर में हम कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर सन रेज जो है फ्लैट सरफेस पर पड़ेंगी तो एट अ इक्वल टाइम पड़ेंगी, बट व्हेन इट कम्स ऑन द अर्थ विच हैज़ अ स्फेरिकल शेप, तो ईस्ट में पहले सन रेज पड़ती हैं कंपेयर टू वेस्ट, ओके। नाउ कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं, ओके, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।